we will focus upon the periodicity and cause of periodicity also. Now I have already discussed you in class 10th also that the periodic repetitions of elements having similar properties after a regular interval of time. The point is that at a very regular interval of time the properties in the elements you can say it's repeated at a regular interval of time. This happens because now the periodic table is being arranged in the increasing order of your atomic number. So once you are arranging your elements in according to your increasing order of your atomic number, now once we say that this is happening, then what we are mainly focusing on, we are focusing on the distribution of electrons. Okay, the electrons that are present in especially in your valence shell or in the outermost shell, because whatever the electrons are present in your valence shell or the outermost orbit, they are mainly contributing the different physical and the chemical properties for the elements. अगर कभी भी कोई भी element आप लेंगे और if you are writing its electronic configuration, so this particular configuration is helpful in mainly you will focus on the valence shells पे आप देखेंगे कि इसके outermost orbits में कितने electrons हैं, है ना. एंड इट विल हेल्प यू आउट दैट दीज टू दिस पर्टिकुलर एलिमेंट मस्ट बी हैविंग सर्टन केमिकल एंड द फिजिकल प्रॉपर्टी. अब जैसे कोई और एलिमेंट ले लो, अभी हम नहीं जानते, हमें मालूम है कि इट इज़ हैलोजेंस एंड दे कम इन द सेम ग्रुप्स, but my point is that कि why we are putting in the same group and why these just see, अब ये दोनों एक ही ग्रुप में, हमें मालूम है कि they are present in the 17th group and just see their electronic configuration of the outermost orbit. हम इसकी बात नहीं कर रहे हैं, we are talking about the outermost orbit. यहाँ पे क्या है, NS2 NP5 आ रहा है, यहाँ पर भी क्या है NS2 NP5 आ रहा है. मीन्स these electrons which are the valence electrons which are present in the valence shell, they are responsible for the chemical and the physical properties of elements. इनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट होंगी, लेकिन 90% प्रॉपर्टीज़ जो इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होंगी वो केमिकल प्रॉपर्टीज़ होंगी वो कम्प्लीटली सेम होंगी, सेम वे ऑफ रिएक्शन केमिकली, क्योंकि बोथ आर हैलोजेंस. तो दिस थिंग है ना, क्योंकि इसमें आपको एंड में क्या पता चला, जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन था वो उनका सेम निकल के आया जो वैलेंस शेल का था. हम ये वाली बात नहीं कर रहे हैं. यहाँ NS2 है, यहाँ अलग है, यहाँ NS2 है, इस जगह NS2 NP6 आ रहा है. यहाँ तो इधर बीच में NS2 NP6 नहीं है, लेकिन जो वैलेंस शेल्स हैं इनके, they are having the same electronic configuration, that is NS2 NP5. चाहे ये हो आप कोई और भी एलिमेंट लेंगे, जैसे आप ब्रो लेंगे तो उसके केस में भी आपको 5s2 और 5p5 मिलेगा, तो ये भी रिजेंबल करेगा इसी से. तो दिस इज़ वॉट योर periodicity. These are the point is that कि the elements have the similar electronic configuration and at a regular interval of time they are repeating in the periodic table, and this leads to them have a similar properties in the regular interval of times, and this causes your periodicities, right? So we will focus on different periodic properties. The very first we are talking about atomic radius or the size of atom, and later on we'll go after that different properties, and we'll see how these properties are varying in your groups as well in a period, and even we'll see the individual between different elements also. That is also very important. 11th we'll focus on atomic radii, which is also known as size of atom. If you remember your class 10th portion, then you know that the distance from the center of the nucleus to the outermost orbit or the valence shell is known as, this particular distance is known as your atomic size. ठीक है, ये पोर्शन जो हो जाता है वो आपका बेसिकली क्या है, एटॉमिक साइज है. ये आपको मालूम है, दिस इज न्यूक्लियस, दिस इज द outermost shell or the valence shell is been there, so electrons are placed over here. So that is the distance which is known as your atomic radius. Now the point is that, what is the point, that in other words you can also, so this is the basically arises because you know the electrons inside the nucleus is 0. So electron density in the nucleus is 0, or you can say is very less comparison to the electron nucleus outside the orbits or in the different orbits. Now this particular term is being modified now, and it has been, you'll study 3 more radius also, like crystal radius, covalent radius and van der Waals radius. Now how come these radiuses arises? This is a new important point, that because these atoms are
they have a mode of attachment, you know. ये तो हम single atom we are seeing, but you know these atoms are forming covalent bonds also, they are forming ionic bonds also, and these are leads to form molecules which have van der Waals forces. So because of that we have different scenarios of explaining these particular size of atoms. So let's talk one by one. So first I'll talk about the crystal radius or atomic radius or metallic radius. Now where this is being asked or where it is being found, let's focus on it. Now suppose this is a metal and this metal comprised of atoms, okay? So this particular metal is having these atoms, and the crystal radius or the atomic radius or the metallic radius, anything you can say, this has been arises because the distance as the half of the distance between the center of the nucleus of two adjacent atoms. Basically you have discussed this portion ना, ये portion आपने देखा था, ठीक है, द सेंटर ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस टू द आउटर मोस्ट ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन. तो यहाँ पे बेसिकली दे आर सेइंग कि देखो एक क्रिस्टल है, अगर मेटल का है, इट मे बी हैविंग मैनी एटम्स. सो ये हाफ ऑफ द न्यूक्लियस एंड टू द एडजेसेंट एटम ऑफ द क्रिस्टल, वो उससे आप रिलेट अप कर सकते हैं, ठीक है. तो ये चीज़ें हैं, आपके एटम्स हैं, आप आराम से अपना डिस्टेंस को मेजर कर सकते हो, ठीक है. सो दिस वे यू कैन हैव अ मेटालिक क्रिस्टल. जैसे कोई भी डिस्टेंस है, टू एडजेसेंट एटम्स का आप डिस्टेंस ले लीजिए, आप आराम से ईजली वे से आप मेजर अप कर सकते हैं, जो आपका पूरा क्रिस्टल रेडियस आ जाता है. क्योंकि एक क्रिस्टल में एटम्स हैं और दो एटम्स की जो डिस्टेंस है उसको आप कवर करके चलते हैं. Now let's talk about the covalent. Now this is I'm just telling you an idea, but this is not at all required. Actually इनको measurement हम तो अपना imaginary करके चल रहे हैं, लेकिन it is been measured by the X-ray diffraction techniques. उसके थ्रू वी मेजर इट. अब जैसे हमारा कोवलेंट रेडियस है, तो बाय लुकिंग इट यू कैन मस्ट बी अराइजेस कि दिस पर्टिकुलर रेडियस अराइजेस इन द कोवलेंट कंपाउंड्स. तो कोवलेंट कंपाउंड्स में होता है आपका कोवलेंट कंपाउंड्स. अगर मालूम है कि आप बॉन्ड जो बनाते हैं तो ऐसे बनाते हैं, जो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टेक्स प्लेस. सो व्हाट इज़ द पॉइंट ऑफ इट? बेसिकली देखो, ये इसका इस पर्टिकुलर एटम का ये हाफ सेंटर्ड है, ये भी हाफ सेंटर्ड है ना. तो ये आप ऐसे इसको यू कैन मेक अ पॉइंट ऑफ मेकिंग इट दैट इट इज़ अ डिस्टेंस. अब इसको देखो, अब ये दिस इज़ बीन ऑल्सो हाफ टफ. सो नाउ व्हाट इज़ द कोवलेंट रेडियस? कोवलेंट रेडियस इज कंप्राइजिंग इन दिस मैनर. ये इस पर्टिकुलर एटम का कोवलेंट रेडियस है, और ये इस पर्टिकुलर एटम का यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो डिस्टेंस आप देख रहे हैं, दिस इज़ योर कोवलेंट रेडियस दैट इज़ बीन टेकिंग प्लेस. तो ये बेसिकली देखो तब है जब ये दोनों एटम क्या हैं, ये कब हुआ है, व्हेन बोथ द एटम्स आर सेम. ऑन द van der Waals रेडियस, जैसे van der Waals रेडियस एक चीज़ आपको समझनी चाहिए, दिस बेसिकली अराइजेज बिटवीन द एटम्स ऑफ सेम थिंग. लाइक फॉर एग्जांपल अगर मॉलिक्यूल आपने लिया H2 है ना, इन दोनों मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स लगती है वो van der Waals फोर्सेज होती है, शॉर्ट लिव होती है, जो मॉलिक्यूल्स को एड ऑन मतलब जोड़े रहती है. जैसे फॉर एग्जाम्पल वाटर के केस में यू नो दैट कोवेलेंट बॉन्ड इज़ देयर, लेकिन वो सिर्फ सिंगल वाटर मॉलिक्यूल में होता है. लेकिन अगर ऐसी दो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, देन व्हाट इज़ द फोर्स दैट इज़ बीन एक्टिंग बिटवीन देम इज़ van der Waals फोर्सेस. अब वही van der Waals रेडियस आपको देखना है वो कैसे अराइज होता है. बेसिकली दिस van der Waals रेडियस अराइजेज, इट इज़ अ डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस ऑफ टू एटम्स ऑफ सेम सब्सटेंस. अब एक ही जैसे यही वाली बात है, ठीक है, आपने वाटर ले लिया या सपोज करो आपने ऑक्सीजन ले लिया, ठीक है, तो दो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स के बीच में एक van der Waals फोर्स लगेगा. उसी डिस्टेंस को आपको देखना है. सपोज करो एक ऑक्सीजन का आपने बनाया, एक अलग ऑक्सीजन एटम है, तो उसके एटम आपने लिए रखे, उनके बीच में जो डिस्टेंस होगा बेसिकली न्यूक्लियस की जो रहता है क्लोजेस्ट अप्रोच आप रखेंगे, कौन सबसे नियर है. भाई हज़ारों होंगे, लेकिन जो नियरेस्ट आपका एटम होंगे उन पे आप लेंगे. तो बेसिकली ये जो डिस्टेंस है, आपने दो अलग अलग एटम्स बनाए रखा है, और van der Waals रेडियस ये हो जाएगा, यहाँ से आपने हाफ ऑफ द डिस्टेंस, दिस पॉइंट इज़ नोन एज योर van der Waals रेडियस. तो कुछ भी हो सकता है इसमें, हाइड्रोजन है, Cl2 है, F2 है, ऑक्सीजन है, कुछ भी आ जाएगा. So this way you can, I am again telling you this is not that much required, but still you should have an idea. Sometimes question indirect comes, so you should know how it's been happening. Now we have to focus about the this thing atomic, क्योंकि हमारे कोर्स में जो ये सब प्रॉपर्टीज़ हैं पीरियोडिसिटी वाली, this thing you have to focus in the groups as well as in periods and individual elements भी we can see. Now let's focus on the group part. ग्रुप में अगर हमने कोई भी ग्रुप ले लेते हैं, सपोज
Now see, when you are seeing the group, I am just taking the first group I am using, and this first group, these elements are there. You know, it's electronic configuration, and now it's a high time. Now we have to focus on this manner. I'm writing down. Now this way you can have the electronic configurations. Now these are the electronic configuration. Now you see that why they are coming the first group, because all these things now you are aware of it. जो वैलेंस electrons होते हैं, that is your group number. तो वैलेंस electron is 1 in all the cases, so its group number is 1. So now focus on one part. What you are seeing over here? If you see few things, that atomic number is increasing. Over here it is 1. Over here, if you write down the atomic number, it is 1, 3, then 11, and it's 19. Sorry. So every time the atomic number is increasing when you move down to group. So one more thing is been there, that when the atomic number is increasing, your number of shells are also increasing. So you are getting 2 points in this, that atomic number increases, because of it nuclear charge तो हमेशा increase होगा, nuclear charge increases. Second thing is that what you are getting over here, atomic number is increases. What is increasing? देखो number of shells increase हो रहे हैं ना, number of shells increases, right? Now what is the scenario over here? These 2 points we are getting कि atomic number बढ़ता है तो nuclear charge बढ़ता है, atomic number बढ़ रहा है तो यहाँ पे आपके number of shells increase होंगे. अब एक से फिनोमेना आता है, क्योंकि we are seeing down the group. If down the group you know the atomic radius increases. Now how come? Please see. न्यूक्लियर चार्ज इज़ इंक्रीजिंग, एटॉमिक नंबर इज़ इंक्रीजिंग, तो डेफिनेटली और साइज शुड डिक्रीज, क्योंकि वो जो न्यूक्लियर होता है, न्यूक्लियर से अगर सपोज़ करो इस पर अगर ये दोनों पैटर्न देख लेते हैं, सपोज़ करो ये पर्टिकुलर न्यूक्लियस है और एक ये पर्टिकुलर न्यूक्लियस है और इसमें ज़्यादा शेल लगे थे, तो नंबर ऑफ शेल्स आर मोर. व्हाट इज़ द केस ओवर हियर, दैट जो न्यूक्लियर जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो डिक्रीज़ होता है. ये होता है ना न्यूक्लियर चार्ज, तो हम लोग हमेशा बोलते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इज़ डिक्रीजिंग ओवर हियर. व्हाई इट इज़ डिक्रीजिंग? बिकॉज नंबर ऑफ शेल्स आर इंक्रीजिंग. ठीक है, तो न्यूक्लियर चार्ज आपका क्या हो जाता है भाई, न्यूक्लियस का क्या होता है, उस पर एक चार्ज होता है, वो क्या करता है, इट अट्रैक्ट्स द इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड इटसेल्फ. So more the charge, more the electrons will be bounded towards the nucleus. But over here, charge, no matter the charge is more, but because of the number of shells are increasing, this effective nuclear charge is been decreasing because of this as the number of shells are increased. So the distance is increased. So size of the atom is also increases over here. So in this point, your number of shells are increased. That leads to decrease the effective nuclear charge. एंड बिकॉज ऑफ इट द एटॉमिक साइज इंक्रीजेज. यहाँ पे देखो न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा है, नंबर ऑफ शेल्स कम है, तो इस कंडीशन में क्या होगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इज मोर एंड नंबर ऑफ शेल्स आर लेस. सो ओवर हियर दिस विल डिक्रीजेज द साइज ऑफ द एटम. दिस पॉइंट यू हैव टू कीप इट इन माइंड. सो व्हाट वी गेट द कंक्लूजन, इफ इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इज लेस, then what will happen, the size of atom, या आप कह सकते हो एटॉमिक साइज क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा. ठीक है, नाउ दिस इज़ द पॉइंट एंड वाइस वर्सा, बोथ द पॉइंट यू हैव टू सी कि भाई अगर इंक्रीज एटॉमिक इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज लेस है तो साइज ऑफ एटम इंक्रीज होगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज मोर है तो साइज ऑफ एटम इंक्रीज. इसमें एक और सिनेरियो आप जोड़ सकते हैं, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज अगर लेस है तो 100% ये श्योर शॉट होगा कि नंबर ऑफ शेल्स विल बी मोर, तभी ऐसा रहा होगा. नंबर ऑफ शेल्स ज़्यादा रहे होंगे जिसकी वजह से इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज लेस रहा होगा और साइज ऑफ एटम जो है आपका इंक्रीज़ हो गया. ये कंडीशन चलती है आपकी ग्रुप में. सो दैट्स वाई ओवरऑल ग्रुप में क्या चल रहा है, ग्रुप में क्या हो रहा है, नंबर ऑफ शेल्स आर इंक्रीजिंग, because of it effective nuclear charge decreases. This leads to increase in size of atom or atomic size.
ठीक है, कुछ भी बोल लो, एटॉमिक साइज़ या एटॉमिक रेडियाई, ये एक थ्योरी आपकी चलती है। दिस इज़ द पॉइंट ऑफ योर दिस थिंग। ना सपोज़ करो अगर कोई टीचर आपको 2 ग्रुप्स दे दे, क्योंकि यहाँ पे इतना इजी नहीं आता कि प्लीज़ एक्सप्लेन इन टर्म्स ऑफ ग्रुप्स और पीरियड्स, बट दे आस्क यू डिफरेंट ग्रुप्स, तो आपको ग्रुप्स के टर्म्स में देना। फर्स्ट आई विल राइट डाउन द ग्रुप नंबर्स, देन वील सी। सपोज आई वांट टू कंपेयर यू विद दीज थिंग्स। लिथियम 2,1 है और ये 2,2 है ना, ये ग्रुप 1 में आ रहा है, ग्रुप 2 में नहीं है, तो 1s2 2s1 एंड 1s2 2s2। ना भले ये 2 ग्रुप्स हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो हम एक अलॉन्ग 2 पीरियड्स पढ़ रहे हैं। अब यहाँ 2 डिफरेंट ग्रुप्स हैं। अगर हम ग्रुप की, इंडिविजुअल ग्रुप की बात करें, ग्रुप 1 की, तो दोनों का केस एक ही चलेगा कि डाउन द ग्रुप द एटॉमिक साइज इज़ ऑलवेज इंक्रीजिंग। बट इफ़ वी आर कंपेयरिंग लिथियम विद बेरिलियम, तो ये 2 डिफरेंट अलग अलग ग्रुप्स में हैं। तो आपको टीचर ये ज़रूरी नहीं है कि पीरियड्स के टर्म में वो बोले कि लिथियम इज़ प्रेजेंट इन ग्रुप 1 एंड बेरिलियम इज़ प्रेजेंट इन ग्रुप 2, हुज एटॉमिक साइज इज़ मोर। तो यू नो दैट इट इज़ अ केस ऑफ, भले ये ग्रुप का है लेकिन इट इज़ टेकिंग इन टर्म्स ऑफ पीरियड्स, क्योंकि एक के बाद एक आ रहे हैं, तो इसका जो एटॉमिक साइज़ है वो ज़्यादा होगा, इसका क्या होगा, कम होगा। ठीक है, इट्स ओके। नाउ लेट्स कम टू दिस पॉइंट। तो ये वो कंडीशन हुई जो इन टर्म्स ऑफ कोई आपको एलिमेंट्स दे दें और तब एक कोई आंसर मांगे, और एक हमने इंडिविजुअली पढ़ा है कि ओवरऑल ग्रुप और ओवरऑल पीरियड्स में कैसे होता है। ठीक है, नाउ लेट्स फोकस ऑन द पीरियड पार्ट ऑल्सो। Now let's come to this part, period I have made, and I have written the electronic configurations of this particular period members. So you can see that what you are seeing that the number of shells, देखो अब ये मत सोचना ये ऐसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बढ़ रहा है तो शेल बढ़ रहे हैं। अगर देखो ये फर्स्ट शेल है, ये सेकंड शेल का केस, ये फर्स्ट शेल है, ये सेकंड केस का, फर्स्ट है सेकंड है, फर्स्ट है सेकंड है, मैक्सिमम क्वांटम नंबर क्या आ रहा है, 2 आ रहा है इसमें, तभी ये सब के सब सेकंड पीरियड में, तो यानी 2 ही शेल हैं आप लोग के पास। सो व्हाट यू आर सीइंग दैट द नंबर ऑफ shells, what the idea has been there, the number of shells are same, सब जगह सेम चल रहा है, कोई ऐसा इशू नहीं है। अब इसमें तुम्हें क्या लगता है कि व्हाट डू यू थिंक अबाउट द न्यूक्लियर चार्ज? न्यूक्लियर चार्ज हर जगह ज़्यादा है भाई, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी बढ़ रहे हैं, पॉजिटिव चार्ज ऑन द न्यूक्लियस इज ऑल्सो इंक्रीजिंग। तो नंबर ऑफ शेल्स सेम होने की वजह से जो आपका न्यूक्लियर चार्ज है वो यहाँ पे क्या है, ज़्यादा है। ज़्यादा तो वहाँ पे भी था, लेकिन नंबर ऑफ शेल्स की वजह से वो डिक्रीज़ हो गया। तो यहाँ बोथ द थिंग्स यू हैव टू सी, द न्यूक्लियर चार्ज इज़ ऑल्सो इंक्रीजिंग and the number of shells are same. So what happened, the size of atom decreases here, right? This way you have to focus on it.